Let's start with the question number 1. It says 2 point charges minus q and plus q are located at points 0, 0 minus a and 0, 0 a respectively. The electric potential at point 0, 0 z. So we have to find potential at a point on the z axis. Let's say this is z axis and our point P is 0, 0, z, and 1 point charge is located at 0, 0, minus a, and other one is q at 0, 0, a. The distance between p and positive charge will be z minus a, difference of z coordinate, and this will be z plus a, difference of z coordinates. As we know, the potential due to a point charge is given by the expression v equals to kq by r. So we can apply this formula for both the point charges to calculate potential at point P. So net potential at point P will be the potential due to this minus q charge minus kq upon z plus a, and this positive charge kq upon z minus a. We can take kq common and LCM z minus a and z plus a, and it will gives us z minus a minus of z minus a plus z plus a. So it will be kq 2a z square minus a square, and vp will be 1 over 4 pi epsilon naught. We can substitute the value of k and 2qa upon z square minus a square. So this is our answer. Option C is the correct answer. Let's see the question number 2. The tension length, diameter, and density of a string B are double than of other string A. Which of the following overtones of B is same as the fundamental frequency of A? And string is fixed from both the ends. So let's start with the A. String A is fixed from both ends, so it is not the standing wave. The fundamental mode will be this, and the length of the string is L, and it will be equals to lambda by 2, that is distance between two consecutive nodes. So we can write lambda equals to 12. As we know, v equals to f lambda, then frequency of fundamental mode will be v by lambda 1 by 12, and v is root t by mu. We can substitute mu is mass per unit length for string. So this is string, and cross section area A, length L. So its mass will be density into volume, and per unit length density into area. So fundamental frequency of A will be 1 by 12 root t by rho A. First equation. Now we can calculate, we can do same calculation for string B. So for string B, let's say it is vibrating in nth harmonic. For nth harmonic, frequency will be n over 12 root tension in string B. Let's say it is t dash upon mu dash and length of string B. So the corresponding parameters of string B I have written with dash. So the frequency will be n, and length is 12 doubled, tension is also doubled, and mu. So basically mu is a root mu dash will be rho dash a dash, or we can write rho dash pi d square by 4, and density is doubled, diameter is doubled, so it will be 4 d square by 4. So it is 8 rho pi d square by 4, 8 rho a. So we can put mu dash equals to 8 rho a. So this frequency will be n upon this will be 8l root t by rho a. Equation number 2. So from equation 1 and 2, for this same frequency of both the strings, f dash equals to f, we can write n over 8l root
T by rho A equals to 1 by 12 root T by rho A. So it will be give us n equals to 4. So this is the fourth harmonic, and fourth harmonic means fourth harmonic equals to third overtone. Basically the second overtone is called second harmonic is called first overtone, third harmonic is second overtone, similarly fourth harmonic is third overtone. So our answer will be C, third overtone, sorry. Let's see the next question. Question number 3. A turning moment M of 100 Newton meter is applied to a shaft which passes through a wheel of radius r equals to 50 centimeter. Okay. With what force must brakes be applied to the wheel so that the wheel should not rotate? The coefficient of friction equals to 0.25. Two brakes are applied on the wheel as shown in the figure. So basically एक wheel है हमारे पास और उस पर दो brakes हैं. Let's say दोनों brake है. ये ब्रेक B1 है और ये ब्रेक B2 है. दोनों सपोज F फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं व्हील पर. तो अगर F फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पर, तो अगर व्हील सपोज रोटेट कर रहा है, ऐसे व्हील आपका ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है लेट्स से ये इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन मीटर. So the friction force will act tangentially, and if it is rotating in anti-clockwise direction, then force of friction on this will be in this direction, and at this point will be in this direction opposite to its tendency. So the friction will be mu into n. So the torque of friction will be mu into n into r and 2. So this torque of friction must be equals to applied torque or external torque so that wheel does not move. And normal contact force for wheel we can write we can write it normal contact force, suppose n, and the brake is applying force P. This will be normal contact force, so it will be 2 mu PR equals to 100. So the applied force will be 100 over 2 mu r. So 100 over 2 mu 0.25, and radius of wheel is 50 centimeter, that is 1 by 2. So P will be 2 can be cancelled out, it is 1 by 4, 100. So it will be 400 Newton. Our answer is A. Let's see the next question. Question number 4. Two pith balls with mass m are suspended from insulating threads. When the pith balls are given equal positive charge, they hang in equilibrium as shown. So basically अगर Q चार्ज हमने दिया है तो थीटा यहाँ पर दोनों एंगल है, ये 2 थीटा कंप्लीट एंगल है. किसी भी स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे mg लगेगा एंड इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. सिमिलरली इसका एबीडी हम बना सकते हैं. एंड यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड mg और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो t के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, t cos थीटा एंड t sin थीटा. So t cos theta will be equals to mg for equilibrium and t sin theta equals to electrostatic force. So tan theta will be electrostatic force upon mg. We now increase the charge on the pith ball from Q to 2Q, left pith ball.
from Q to 2Q while leaving its mass essentially unchanged. So basically लेफ्ट बोल का हमने चार्ज इंक्रीज कर दिया, सो लेफ्ट बोल का चार्ज हमने 2Q कर दिया है और यहाँ Q है, लेकिन मास दोनों का सेम है अभी भी। और जो पॉसिबल डायग्राम है, जो सिचुएशन है सिस्टम की, वो हमें चूज करनी है यहाँ पर। तो सपोज यहाँ पर अगर हम किसी का भी एफबीडी अगर बनाते हैं किसी भी बॉल का, तो टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और नीचे mg लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर टेंशन लगेगी टी डैश सपोज, और ये mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मास दोनों का सेम है तो mg सेम रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पर सेम लगेगा, चाहे आप एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो। कूलम लॉ से हम बोल सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगेगा। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हैं कि आपका एक्शन रिएक्शन सेम रहेगा। एक्शन रिएक्शन सेम रहेगा तो दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों वायर्स में टेंशन भी इक्वल होंगी, सेम टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों के जो एंगल रहेंगे वर्टिकल से वो सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। तो आप बोल सकते हो एंगल भी सेम रहेगा। आप दोनों के लिए phi1 phi2 एज्यूम करके और दोनों का एफबीडी बनाकर क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वहां से यही रिजल्ट आएगा, दोनों का phi1 इक्वल्स टू phi2। तो दोनों एंगल सेम होंगे। और यहाँ पर अगर टेन थीटा, यहाँ पर टेन फाई जो होगा बेसिकली वो होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो न्यू है अपॉन mg। तो mg हमने चेंज नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ फाई जो है वो थीटा से बड़ा होगा। तो दोनों सिमेट्री रहेंगे, phi1 इक्वल्स टू phi2 रहेगा। अगर ये phi1 है ये phi2 है तो दोनों इक्वल होंगे, और जो फाई है बेसिकली वो प्रीवियस केस से बड़ा होगा, दोनों में सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अपना आंसर होगा डी। लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। A ray of light traveling in medium x is incident on a plane surface of two media x and y. So basically this is x, this is y, and light is traveling from x to y and gets refracted into medium 2. Light refract हो रही है medium y में, the angle of incidence is I and angle of refraction R. Graph between sin I and sin R has been shown in the figure, then which of the following is इनकरेक्ट। तो बेसिकली हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, थोड़ा ध्यान देना हमें। तो स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, म्यू एक्स साइन आई इक्वल्स टू म्यू वाई साइन आर, स्नेल्स लॉ। एंड यहाँ से हमारे पास साइन आर अपॉन साइन आई आ जाएगा म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई। ओके, एंड यहाँ पर हमें जो कर्व गिवन है, जो ग्राफ गिवन है साइन आई और साइन आर एंड साइन आई का कर्व गिवन है, तो यहाँ की जो स्लोप रहेगी बेसिकली 1037 स्लोप रहेगी, जो कि होगी साइन आर अपॉन साइन आई, और 1037 3/4। सो बेसिकली यहाँ पर म्यू एक्स बाई म्यू वाई 3/4 होगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो यहाँ पर मिल गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो देख सकते हैं, म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई ये लेस देन 1 आएगा, 3/4। सो म्यू एक्स लेस देन म्यू वाई। सो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक्स का वो कम होगा, रेयर मीडियम होगा एक्स, और वाई डेंसर मीडियम होगा। तो ए ऑप्शन हमें बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीडियम वाई, ऐसा नहीं है। तो बी इनकरेक्ट है, तो ये अपना आंसर होगा। ए इनकरेक्ट है तो अपना आंसर होगा बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीडियम एक्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है तो अपना आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट पूछा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज 3/4 ऑफ द दैट इन मीडियम एक्स। सो बेसिकली यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो म्यू रहता है दैट इज स्पीड ऑफ light in vacuum to the medium. So let's say in medium x the speed of light is vx, and similarly c by vy this will be 3/4,
So we will get Vy by Vx equals to 3/4. So speed of light in medium y. So medium y में जो speed आएगी Vy, that is 3/4 of Vx. The speed of light in medium y is 3/4 of that in medium x. तो ये correct है, 3/4 है Vx का Vy. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट अपना आंसर नहीं होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. तो बेसिकली हमने अभी कैलकुलेट किया था कि म्यू एक्स कम है म्यू वाई ज्यादा, मतलब एक्स रेयरर है वाई डेंसर है. लाइट रे रेयरर से डेंसर आ रही है तो टी आई आर नहीं होगा, क्योंकि टी आई आर की एसेंशियल कंडीशन है कि लाइट आपकी डेंसर से रेयरर आनी चाहिए. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा. तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है और अपना आंसर नहीं होगा. तो अपना आंसर यहाँ पर होगा ए. The question says a ball of mass 1 kg is thrown up with an initial speed of 4 meter per second. A second ball of mass 2 kg is released from rest from some height as shown in the figure. We are given some options. A, the center of mass of the balls comes down, I think, with acceleration g by 3. The acceleration of center of mass first move up and then okay. So we have to find the parameters of center of mass. So initial velocity of center of mass is m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. So 1 into 4 plus 0 into 2 upon 1 plus 2. So UCM will be 4/3 meter per second, 4/3 meter per second, and इट इज पॉजिटिव. तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी. एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ACM लिख सकते हैं. ACM m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2. सो दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इन पर लग रहा है, केवल फ्री फॉल टाइप इनका मोशन है. तो हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम इसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. सो m1 इंटू माइनस जी प्लस m2 इंटू माइनस जी अपॉन 1 प्लस 2. So ACM will be minus 3g upon 3 equals to minus g. So acceleration is downward. ACM नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पर कि नेगेटिव डायरेक्शन में. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, इनकी वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे. तो ऊपर जाने पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और एक पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी एंड देन ये वापस नीचे आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स कम्स डाउन विद एक्सेलरेशन g/3. नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन -g होगा. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बी, द सेंटर ऑफ मास फर्स्ट मूव्स अप एंड देन कम्स डाउन. ये करेक्ट है, पहले ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नीचे, और एक पॉइंट पर 0 हो जाएगी वेलोसिटी, फिर नीचे आएगा. सी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जी डाउनवर्ड. बिल्कुल करेक्ट, हमने अभी कैलकुलेट किया है. -g, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है. बी एंड सी. डी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स स्टेशनरी. नहीं, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है. तो यहाँ पर अपने आंसर आ जाएंगे बी एंड सी. नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. The magnetic flux linked with a conducting coil depends on time F equals phi equals to 4t power n plus 6, where n is positive constant, I think so, positive constant. The induced EMF in the coil is E. Induced EMF is E. So as we know, induced EMF equals to minus d phi by dt. A minus sign gives the direction. So minus differentiation of this will be n t power n minus 1 and differentiation of 6 0. So E equals to minus 4 and t power n minus 1 and magnitude of E equals to 4 and t power n minus 1. Now first option, if n, A option, n lies between 0 to 1.
So if n lies between 0 to 1, so mod of E will be 4n t power n minus 1, and n minus 1 will be negative. सो यहाँ पर जीरो एन अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो n माइनस 1 एक नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4n अपॉन टी पावर 1 माइनस एन, एंड हम बोल सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिनोमिनेटर टर्म बढ़ेगी और आपका ई डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है एन, तो ई जो मोड है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन, इफ n इक्वल्स टू 1 e इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो अगर n हम 1 पुट कर दें तो मोड e आपका आ जाएगा 4n, दैट इज 1, 4 into 1, and t power 1 minus 1 0, so it will be 4, so it is constant. So B is also correct. Now let's see the option C, if n greater than 1. So if n greater than 1, then mod of E will be 4n t power n minus 1, and n minus 1 will be positive for n greater than 1. So with time t power n minus 1 will increase, or we can say mod E will increase. So option C is also correct. D, if n greater than 1, E decrease with time. So contradictory to C, so our answer will be A, B, C in this case. Let's move to the next problem, question number 8. Inside a uniform sphere of mass m and radius r, a cavity of radius r by 3 is made in this sphere as shown. So basically हमारे पास एक sphere था जिसका मास m रेडियस r है, और यहाँ से एक केविटी हमने बनाई है, कंसेंट्रिक नहीं है ये, केविटी की रेडियस r by 3 है। हमें ग्रेविटेशन फील्ड पूछा है इनसाइड द केविटी, फर्स्ट ऑप्शन में द ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द केविटी इज यूनिफॉर्म। तो बेसिकली ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो केविटी के अंदर कांस्टेंट ही होता है, और इसकी वैल्यू होती है 4/3 पाई रो जी आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, तो आर ये डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर्स। तो आप किसी भी पॉइंट पर बात करो तो ये फील्ड आपका यूनिफॉर्म आएगा। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द कैविटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो ये गलत होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इज। सो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर किसी पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो वापस उस प्लेनेट पर रिटर्न ना करे या उस सिस्टम में ना आए, उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो सी ऑप्शन के लिए हम देख सकते हैं कि जो सिस्टम है उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। आपका जो कंप्लीट स्फीयर है और प्लस एक छोटा जो स्फीयर है जो हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके पैरामीटर्स हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोटल मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिमिलरली इसका मास जो केविटी का जो मास है वो हम देख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई, एंड यहाँ पर रेडियस r/3 है, सो r/3 क्यूब इट विल बी m/27। तो बेसिकली केविटी का जो मास है वो m/27 होगा। किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए आपका यहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट ए यहाँ है और केविटी के रेस्पेक्ट में यहाँ होगा।
स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस r है और केविटी के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसकी, तो केविटी b से इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर वो आपकी होगी 2r माइनस r/3, दैट इज 5r/3। तो जो डिस्टेंस थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया तो हाफ एम वी स्क्वायर एम नॉट, ऑब्जेक्ट का मास एम नॉट में ले लेता हूँ जिससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मास इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर मैं इस कंप्लीट स्फीयर का बात करूँ तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ Gm/r, एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे केविटी का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पोटेंशियल, वो आपका आएगा -Gm/27, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी 5/3r। सो दिस इज द initial total energy equals to finally at infinity the potential energy will be 0 and kinetic energy will also be 0. So half m v naught square can be written as m naught, it will be Gm/r minus Gm by, it will be 45r. So m naught can be cancel out, sorry, m naught can be cancel out, so v square will be 2 Gm/r, and 45 हम LCM ले सकते हैं, 45 minus 1, so v square equals to 88 Gm/45 r, and v will be root over 88 Gm/45 r. So option C is correct. In option D, the escape velocity is defined for Earth and particle system only. No, it can be defined for any system. So D will be wrong. Let's see the next problem. Problem question number 9. 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes a cyclic process as shown in figure, where V is the volume, T is the temperature. Which of the statements below are true? तो बेसिकली यहाँ पर हमें टीवी ग्राफ गिवन है, इसे हम एनालाइज करना है। प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एंड यहाँ पर अगर मैं 1 की बात करूँ तो प्रोसेस 1 में वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। प्रोसेस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंशन सॉरी टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो डेल्टा क्यू वर्क डन के इक्वल होगा, और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव है तो हीट एक्सचेंज भी पॉजिटिव होगा, मतलब गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी। बी आंसर करेक्ट है। सी ऑप्शन, इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेज हीट। प्रोसेस 4 में अगर हम बात करें तो सेम ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू 0 है, एंड यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू वर्क डन आ जाएगा सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, एंड ये नेगेटिव आएगा वर्क क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा और हम बोल सकते हैं हीट रिलीज होगी, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमें पता है जो टीवी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बेसिकली पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड यहाँ पर दोनों कर्व है फर्स्ट एंड थर्ड, सो ये आइसोबैरिक नहीं है। आइसोबैरिक के लिए टीवी कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी से हम देख सकते हैं। आइसोबैरिक के लिए वी इक्वल्स टू एन आर बाई पी टी, तो इट इज स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो डी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर अपने आंसर हो जाएंगे बी, सी एंड डी। The next problem is question number 10. Question number 10 says velocity of a particle of mass 2 kg changes from v1 to v2
after colliding with a plane surface is smooth. So the angle made by the plane surface, I think it's plane surface with the positive x-axis is 90 plus this, and okay. So we have to find the orientation of the plane, angle of plane. So as we know, suppose this is the plane and a particle hits the plane and rebound like this, the normal contact force will act like impulsive force or collision force, and it will be perpendicular to the incline. So it will be the impulsive force, total impulse, or we can calculate impulse J as change in momentum M, V final minus V initial. So the change in momentum will be final velocity I cap minus J cap minus initial velocity minus 2 I cap minus 2 J cap. So it will be 3 I cap and plus J cap, 6 I cap plus 2 J cap. This is a direction of impulse. So if we consider this is x-axis, this is y-axis, so the impulse direction will be this, normal contact acting along the impulse direction, and this is the angle theta. So tan theta will be 2 by 6, that is 1 by 3. So theta is tan inverse of 1 by 3. This angle will be 90 minus theta, so this angle will be 90 plus theta. So angle of incline with the x-axis will be 90 plus theta, that is 90 plus tan inverse of 1 by 3. So first option says the angle made by the plane surface with the positive x-axis is 90 plus tan inverse 1 by 3 is correct. The angle made by the plane surface with the positive x-axis, no, this is not correct. C option, the direction of change in momentum makes angle tan inverse 1 by 3 with the positive x-axis. This is right. J basically is at an angle theta with the x-axis, and theta is tan inverse 1 by 3. So C option is correct. And the D option, the direction of change in momentum makes angle 90 plus this with the plane surface is incorrect. So basically we have two options to correct, options A and C. Let's see the next question. Question number 11. The capacitor of capacitance C is connected to two voltmeters A and B. A is an ideal voltmeter, ये ideal है, मतलब इसका जो resistance है वो infinite है, while B has resistance R. So B has resistance R. The capacitor is uncharged, and then switch SW is closed at t equals to 0. So basically we can redraw this circuit as this is ideal voltmeter, resistance RC, and this will be open circuit. So we can say this is simple charging circuit, charging of capacitor. So in this circuit, the charge on the capacitor at any time t is given by CE 1 minus e power minus t by tau, where tau is time constant, tau equals to RC, and current is given by E by R 1 minus, sorry, E by R e power minus t by tau. So these are the expressions from charging RC circuit. Reading of B and A will be E at t equals to 0. At t equals to 0, we can say put t equals to 0, it will be e power 0. E power 0 is 1. So Q equals to CE 1 minus e power 0 will be 0. And current will be
e power 0 1, so current will be E by R. So basically, and the potential across the reading of B, so potential difference across resistance R or voltmeter B will be IR, E by R equals to E, and VC equals to Q by C. As we know, Q equals to CV, so Q is 0. So reading of this voltmeter A at t equals to 0 will be 0, and reading of this voltmeter B will be E. So a reading of B and A will be E and 0. So option A is correct. Let's see the option B. During time interval 0 to infinity, reading of B and A are changing. So basically these depends on the time as shown in here. So these will change with time. So B option is also correct. The potential will also change. So VB we can write I into R, that is E power minus T by tau, changes with time, and VA will be potential difference across capacitor, that is Q by C, E 1 minus E power minus T by tau. So basically these two changes will change with time. So B option is also correct. See, the reading of A and B will be equal at T equals to RC. So for option C, we can put VA equals to VB. In that case, we will get E power minus T by tau equals to 1 minus E power minus T by tau. E power minus T by tau equals to 1 by 2. And from here, we will get ln2 equals to T by tau, and tau equals to RC. So time will be RC ln 2. So option C is also correct. So ABC are correct options, and D, none of these is incorrect. So our answer will be ABC. Let's see the next problem. Problem number 12. Question number 12 says, for a certain radioactive substance, it is observed that after 4 hours, only 6.25% of the original sample is left undecayed. It follows that. So basically यहाँ पर हमें कुछ options given है, half life, mean life और decay constant के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, 4 आवर्स के बाद में हमारे पास इतना सैंपल बचा है. तो सैंपल कुछ हाफ टाइम की अगर मैं बात करूँ, ये कितना सैंपल बचा है, ये अब बचा अपना 6.25 बाई 100. तो ये आ जाएगा 625 बाई 100 इंटू 100, 25. सो 4 दिस विल बी 1 बाई 16. सो जो सैंपल हमारे पास बचा है, एंड वो इनिशियल का 1/16 टाइम बचा है. एन को हम लिख सकते हैं n0 ओवर 2 पावर 4. तो बेसिकली nth हाफ लाइफ के बाद में हमें पता होगा nth हाफ लाइफ के आफ्टर nth हाफ लाइफ जो आपका n है वो आपका होता है n ओवर 2 पावर n. n इज स्मॉल n इज द nth half life, number of half life. So we can compare these two formula and get n equals to 4. So basically at 4 hours, 4 half lives has passed. So one half life will be 4 hours by 4, that is 1 hour. So basically half life will be 1 hour. So option A is correct, the mean life. So half life, as we know, T half equals to ln 2 by lambda. So lambda decay constant equals to ln 2 by 1. So we can say ln 2 R inverse. जो यूनिट है वो हम R में लेके चल रहे हैं, तो ln 2 हमारा decay constant आएगा. ऑप्शन सी, the decay constant of the sample is 2 R inverse. Correct. And mean life, as we know, mean life
equals to 1 by lambda. So mean life will be 1 by ln2 hours. So 1 by ln2 hours. Option B is also correct. D, after further 4 hours, the amount of substance left over would by only 0.39% of the original amount. So basically, after further 4 hours, so we can say total half-lives will be 4 plus 4, 8 half-lives. 4 hours before and 4 hours after. So after 8 half-lives, जो आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर रहेंगे वो इनिशियल न्यूक्लियर अपॉन 2 पावर 8 होगा। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो n बाई एन नोट इंटू 100 हम कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1 ओवर 2 पावर 8 इंटू 100, 100 ओवर 16 इंटू 16। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 256 और ये हमारा आएगा 0.39%। सो बेसिकली डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर अपने आंसर्स होंगे ए, बी, सी एंड डी। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 12, question 13, question number 13. Question number 13 says a length of 150 of a potentiometer wire is required to balance the EMF of a cell. Basically a potentiometer wire है अपने पास AB एंड इसकी लेंथ हमें चाहिए 150 मीटर बैलेंस करने के लिए। कब? जब हमें किसी सेल के EMF को बैलेंस करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगी 150 मीटर आएगी। सपोज हम मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इस पोटेंशियोमीटर के लिए। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर EMF E है तो मैं बोल सकता हूँ E आपका आएगा लैम्डा इंटू L, जो कि आ जाएगा लैम्डा इंटू 150। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमें गिवन है कि अगर हम एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, when a 5 ohm resistor is connected across the terminals of the cell, the length required for balance is 125 centimeter. So इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी, लेकिन इस केस में पहले वाले केस में यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये पोटेंशियल इस तरीके से मैच हो जाएगा। सेकंड केस में अगर हम बात करें, सेम पोटेंशियोमीटर वायर आपका, इस बार हमें जो लेंथ चाहिए वो 125 मीटर चाहिए। किसे बैलेंस करने के लिए? तो सेकेंडरी सर्किट है, वहां पर हमने एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया है 5 ओम का इस बैटरी के पैरेलल, और इसे बैलेंस करवाने के लिए जो लेंथ चाहिए हमें वो चाहिए 125 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस 125 इंटू लैम्डा होगा, एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सपोज ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही होगी सेकेंडरी सर्किट में वो बैटरी से निकलकर यहाँ पर ऐसे सर्कुलेट हो रही होगी, गैलोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ जो करंट आएगी आपकी वो आएगी E अपॉन 5 प्लस आर, एंड बैटरी इसमें डिस्चार्ज हो रही है तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा। आर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सो हम इसे लिख सकते हैं E माइनस ई आर अपॉन 5 प्लस आर। तो 125 लैम्डा हमारे पास आ जाएगा E एंड 5 अपॉन 5 प्लस आर। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें ध्यान से तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 125 बाई 150 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 प्लस आर। इक्वेशन 2 बाई 1 किया हमने, तो यहाँ से ये 25 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 प्लस 5 आर इक्वल्स टू 30, 5 आर इक्वल्स टू 5 आर इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1 ओम होगा इस सेल का। Let's see the question number 14. It says in the part of the circuit shown in the figure, the potential difference Vg minus Vh. So Vg, this is Vg और this is Vh. पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर करंट की, यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट होगी एंड यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगी।
यहाँ पर अगर बात करें इस जंक्शन पर KCL को अगर देखें 1 एम्पियर इधर जा रही है, 1 एम्पियर नीचे जा रही है, तो टोटल इधर से 4 एम्पियर करंट आ रही होगी, यहाँ से 4 एम्पियर आ रही होगी और वो 3 और 1 में डिवाइड हो रही है। अब इस जंक्शन पर अगर मैं बात करूं तो 2 इधर से आ रही है और 4 इधर से चली गई है, तो डेफिनेटली इधर से एक्स्ट्रा 2 आ रही होगी जो कि 2 क्लब होके 4 बन गया होगा। तो इस तरीके से हम करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हम KVL लगा देते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं G से H के लिए। तो VG से स्टार्ट कर रहे हैं, VG, देन इधर जाएंगे तो -IR, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R, जो कि आ जाएगा 2 इंटू 4। देन बैटरी में हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो +3 लिख सकते हैं। देन इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा -I इंटू R, इसमें करंट 2 है। एंड फिर हम नीचे जाएंगे तो करंट ऊपर आ रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस +IR होगा, 2 इंटू 1, एंड इक्वल्स टू हम पहुंच गए H पॉइंट पर, तो ये पोटेंशियल होना चाहिए H के इक्वल। तो यहाँ से VG माइनस VH हम लिख सकते हैं 8 -3 +4 -2, सो 12 - 5, यह आ जाएगा 7। तो 7 वोल्ट यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Let's see the next problem, question number 15. So question number 15, it says a circular coil A has a radius capital R and current flowing through is I. Another circular coil B has radius 2R and current 2I is the current flowing through it. Then the ratio of magnetic field at the center of the coil B to the magnetic field at the center of coil A. So यहाँ पर अगर कोई सर्कुलर कोयल है तो उसके लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन रहता है μ0 Ni/2R, आर रेडियस आई करंट, एंड नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमें 1 ही गिवन है, एक सर्कुलर कोयल है, कुछ गिवन नहीं है उसके बारे में, तो हम इसे 1 ले लेते हैं, या फिर सेम होगा ये दोनों के लिए। तो अगर मैं बी पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी के सेंटर पर, तो ये आ जाएगा μ0, इसमें जो करंट है दैट इज 2I एंड 2 रेडियस 2R, इट विल बी μ0I/2R। एंड ए पर अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा μ0I/2R। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों पर पोटेंशियल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आ रहा है, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो 1 रहेगा। तो BB/BA विल बी 1। आवर आंसर इज 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं, क्वेश्चन 16। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits act as current source of equal amplitude A and wavelength lambda. If another experiment with the same setup, the 2 slits are source of equal amplitude A and wavelength lambda but are incoherent. The ratio of intensity of light at the midpoint of the screen into the first case to that in second case. तो basically midpoint पर हमें intensity पूछी है, मतलब सेंट्रल जो मैक्सिमम हमारा जहाँ पर बनता है। तो अगर कोहेरेंट सोर्स, अगर मैं पहला केस ले रहा हूँ जिसमें हमारे दोनों जो स्लिट है S1 S2 दोनों से इंटेंसिटी I0 आ रही होगी, सेम आ रही होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है और वेवलेंथ सेम है। तो यहाँ पर अगर कोहेरेंट सोर्स ले रहा हूँ मैं, पहला कोहेरेंट सोर्स अगर कोहेरेंट है दोनों, तो उस केस में हमें पता है स्टैंडर्ड जो आंसर है I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2। यहाँ पर डेल्टा थीटा पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस अगर मैं इस केस में सेंट्रल पॉइंट पर देखूं तो ये आ जाएगा 0 एंड cos 0 1 होगा, तो ये हमारा 4I0 पहले केस में। दूसरे केस में हमें बोल रखा है कि दोनों सोर्स आपके इनकोहेरेंट है। अगर इनकोहेरेंट है तो जो लाइट आएगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो फेज डिफरेंस पर हमें पता है इस तरीके से डिपेंड करती है, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos डेल्टा थीटा। यहाँ पर I को हम लिख सकते हैं सेम, अगर I0 सेम है तो 2I0 + 2I0 cos डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर ये डेल्टा थीटा सभी वैल्यू परचेज कर रहा होगा 0 से 180, 0 से 360, सभी वैल्यू यहाँ पर
परचेज कर रहा होगा। ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइट के बीच में फेज डिफरेंस फिक्स नहीं है, इसीलिए ये इनकोरेंट है, इनकोरेंट की डेफिनेशन से। तो हमें अगर एवरेज वैल्यू इसकी लेनी है तो हम इसके एवरेज वैल्यू ले सकते हैं 2I0 की एवरेज वैल्यू 2I0 एंड 2I0 और कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए 0, सो ये आ जाएगा 2I0। तो जो इंटेंसिटी हमें अपीयर होगी वो 2I0 अपीयर होगी सेकेंड केस में। तो हमें रेशियो पूछा है, तो रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 4I0 अपॉन 2I0 दैट इज 2। तो अपना आंसर यहाँ पर होगा 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। हम एक पैरेलल एलसी सर्किट गिवन है एक एसी सोर्स के साथ, करंट इन द इंडक्टेंस इज 0.8 एम्पियर व्हाइल इन द कैपेसिटेंस इज 0.6 एम्पियर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो बेसिकली नेट करंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। तो वोल्टेज सपोज ये फेजर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वोल्टेज अप्लाइड सपोज ये है आपका वोल्टेज अप्लाइड, एंड यहाँ पर हमें पता है कि जो कैपेसिटर की करंट होगी वो यहाँ पर लीड करेगी। तो कैपेसिटर की करंट वोल्टेज से लीड करती है, तो यहाँ पर लीड करवा दिया 90 डिग्री से लीड करती है और ये आ जाएगा 0.6। और जो इंडक्टर की करंट होती है वो लैग करती है वो इसके वोल्टेज से, तो ये लैग करेगी नीचे 90 डिग्री से 0.8। तो आप देख सकते हो जो वोल्टेज है उससे ये नेट करंट आपकी आ जाएगी इधर 0.8 एम्पियर, सॉरी 0.8 माइनस 0.6 एम्पियर, जो कि आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो जो नेट करंट आएगी वो 0.2 एम्पियर आएगी। मीनिंग बस यही है सिंपल कि किसी इंस्टेंट पर अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि किसी इंस्टेंट पर अगर कैपेसिटर में करंट इस डायरेक्शन में तो इंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंड दोनों उल्टा रहेगा। नेट करंट जो रहेगी बेसिकली इन दोनों का सॉरी डिफरेंस रहेगा। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। लेट्स सी दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, and I think last problem of the paper. A convex mirror focal length 10 centimeter forms a virtual image of a real object. हम एक वर्चुअल इमेज बना रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट की। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक स्मॉल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनती है फोकस और पोल के बीच में, एंड रियल एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस। तो यहाँ से जो फोकस से डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और टोटल जो फोकल लेंथ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पोल और इमेज के बीच में ये डिस्टेंस आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट साइज टू इमेज साइज। तो बेसिकली यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v 8 आएगा प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/10। सो 1/u विल बी 1/10 माइनस 1/8। हम इसे एलसीएम ले लेते हैं 80 एंड 8 माइनस 10, तो v आ जाएगा आपका -40 सेंटीमीटर। दिस मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 40 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूँ जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह जाएगा आपका -v/u। सो -v यहाँ पर हमें गिवन है 8 एंड u -40, सो इट विल बी 1/5। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज विल बी 5। सो क्वेश्चन नंबर 18 विल हैव आंसर 5। तो यहाँ पर बेसिकली जो न्यूमेरिकल सेक्शन था काफ़ी इजी था कंपेरेटिवली जो आपके इंटीजर और मल्टी करेक्टर वाले थे।